Hello students, welcome to my channel. Today I'm back with another set of MCQs for a different subject, that is geography. So exams are approaching and I know you need a lot of MCQs to practice. Here you go with many of MCQs which you will get in proper explanation, and each and every part is important. So I will say do not skip the video because each and every question is important here, right? Very important questions collections is here. Here you will get all the assertion and reasoning, case based questions, everything you will get, right? So don't miss it, okay? And we begin with the very first question on the screen. Which of the following resources occur over a very long geological time? मतलब कौन सा वाला रिसोर्स बहुत देर तक रहता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, ऑल ऑफ दीज. सो कौन सा वाला होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब जो रिन्यू नहीं कर सकते, रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट? एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस एक इंडिविजुअल लोग यूज कर सकते हैं, अदर्स कैन नॉट यूज इट, सच एज लैंड, राइट? लैंड इज ओनली योर्स. इफ यू हैव बॉट द लैंड देन इट्स ओनली योर्स. So, and all of these are very long geological time. No. So the correct option is A, non-renewable resources, right? We move on to the second question on the screen. When and where did Rio de Janeiro Earth Summit took place? 1922 USA, 1921 USA, 1922 Brazil, and 1921 Brazil. So which one will be the correct one? As you know, that Rio de Janeiro Earth Summit was on sustainable development, right? तो sustainable development क्या चीज है कि हम लोग तो डेवलपमेंट करेंगे बट विदाउट अर्थ को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन, रिसोर्सेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन का रिसोर्सेस हम लोग डिप्लीट नहीं करेंगे, और we should also take care of the resources of the earth. अर्थ को भी हार्म नहीं होना चाहिए. तो वो वाला एम था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट का. तो आंसर क्या होगा? 1922 ब्राजील. ये याद रखिएगा कि डेट कौन सा है और जगह कौन सा है कि ये वाला अर्थ समिट हुआ था. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Which of the following is or are aim of Agenda 21? आपको तो पता ही है कि रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था, राइट? तो उनमें से कौन सा वाला था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, रिड्यूस डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, ऑल ऑफ दीज. तो जैसे हम बोले कि ये रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट का ही एजेंडा था, तो इन लोगों ने क्या किया कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किए. यस, इट्स करेक्ट. टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज मतलब एनवायरमेंटल डैमेज जो हुआ है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड व्हाटएवर द केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड, दोज आर combated, means it's being on the way to reduce it and reduce diseases through global cooperation. तो global cooperate करके कोई भी disease जैसे pandemic जैसा, okay, like COVID जैसा, तो ये जो कोविड हुआ था पूरा दुनिया एक साथ इकट्ठा हुआ था हेल्प करने के लिए. yes or no? So who has helped? WHO, who, right? So it has helped each and every country, means it's a global cooperation to reduce the diseases or all of these. So correct option is all of these. We move on to the fourth number question on the screen. Which of the following resources are renewable resources? कौन सा हम लोग renew कर सकते हैं? Wind energy, fisheries, pasture lands and burial lands. तो burial grounds तो हम लोग renew नहीं कर सकते. Pasture lands also cannot be renewed, right? Fisheries, that also it's available and sometimes it's not. विंड एनर्जी हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, राइट? विंड एनर्जी हम लोग विंड मिल के सहारे से यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं.
So the correct option is A. We move on to the fifth number question on the screen. Which resource occur over a long geological time? Okay, this is again long geological time. कौन सा वाला resource होता है? ये same question दिया हुआ था. Okay, it's a non-renewable resources. Now we move on to the sixth number question. Which of the following resources are found in the region but have not been utilized? कौन सा वाला रिसोर्स रीजन में मिलता है पर वो यूटिलाइज नहीं होता है? कौन सा वाला? नंबर 1 इज स्टॉक, नंबर 2 डेवलप, नंबर सी पोटेंशियल एंड नंबर डी रिजर्व्स. कौन सा वाला होगा? पोटेंशियल रिसोर्सेज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन में मिलता है पर उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो correct option is C. We move on to the 7th number question. How is the issue of sustainability important for development? Sustainability कैसे development के लिए important है? तो देख लेते हैं options. Sustainability development aims at fulfilling the need of today without compromising the needs of future generations. It lays emphasis on environmental protection and check environmental degradation. And C, to stop over exploitation and overuse of resources. And all of these. So, which one will be the correct one? Yes, first option says that it fulfills the need of today without compromising. As I have said, sustainability development means we will not deplete or deploy the resources available to us and rather not the resources which are available for future generation. Both we cannot compromise, right? Yes, it's correct. Next, we move on to the option B. It lays emphasis on environmental protection. Obviously, that is the main topic, right? उसका main aim तो यही है कि environmental protect करना. And the C is to stop over exploitation and overuse of resources. मतलब क्या कि ये जो over exploitation हो रहा है and overuse हो रहा है उसको stop करना, right? And all of these. So all of these will be the correct one because environmental sustainability development is important is through all this, right? Now we move on to the 8th number question on the screen. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स हो रहा है इन आवर एनवायरमेंट, तो इंटरैक्टिव रिलेशनशिप किसके बीच में ला रहे हैं? In nature and technology, nature, technology, institutions, environment, nature, environment and technology. तो इधर से आपको साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन बिकॉज नेचर वी आर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम द नेचर. देन इफ टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर, टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो कैसे वो थिंग्स हम लोग कैप्चर करेंगे, राइट? उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस. तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस तो होना चाहिए ना उसको प्रॉपर यूज करने के लिए, नहीं तो क्या फायदा? आप नेचर से ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी से, एंड यू आर नॉट यूजिंग इट, तो उसका क्या फायदा है, राइट? इट्स सिंपली अ डिप्लीटिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस इज द बेस्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन टू द 9th number question on the screen. Water in the dams, forest, etc. is a dash resource which can be used in the future. तो फ्यूचर में कौन सा वाला रिसोर्स है कि हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? पोटेंशियल, रिजर्व, रिन्यूएबल, नेशनल. तो ये जो वाटर है, डैम्स और फॉरेस्ट को जो हम रिजर्व कर रहे हैं, ओके, सो दैट फॉरेस्ट यू नो आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो उधर से हम लोग को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है, राइट? बिकॉज ऑफ द प्लांट्स दे डू फोटोसिंथेसिस. और डैम्स का जो वाटर है वो स्टोर किया जाता है ताकि डिफरेंट डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ दे कैन बी यूज्ड. ओके, तो ये क्या स्टोरिंग मतलब क्या? रिजर्व, राइट? सिनोनिम स्टोरिंग ऑफ रिजर्व, राइट? So the correct option is B, reserve. We move on to the 10th number question. What are shelter belts? Cultivating, making steps, planting lines of trees to create shelter, planting huge bush plants in deserts, or planting near waterbeds. तो obviously cultivation तो नहीं है ये,
हाँ, तो लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट अ शेल्टर, ये हो सकता है, राइट। सो शेल्टर बेल्ट, बेल्ट जैसा, राइट। तो लाइन्स ऑफ ट्रीज बिल्ड किया गया, प्लांट किया गया है ताकि एक शेल्टर जैसा बेल्ट बना सके, ओके। एंड ह्यूज बुश प्लांट्स इन डेजर्ट्स, इसका तो कोई काम ही नहीं है, प्लांटिंग नियर वाटर बेड्स, बट दैट इज नॉट अ शेल्टर बेड, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। We move on to the 11th number question on the screen. The lower horizon of the arid soil is occupied by due to increasing. तो arid soil का जो lower horizon है वो किस चीज से occupied है, right? So number 1 is phosphorus content, number 2 potash content, and number 3 lime, potash and phosphorus content, number 4 calcium content. ये याद रखिएगा कि arid soil जो lower horizon है वो कैल्शियम कंटेंट के डिपोजिशन से बना है, राइट। इट इज ऑक्युपाइड बाय ड्यू टू द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द 12th number question on the screen. In the snow covered areas of Himalayas, which of the following soil experiences denudation and is acidic in nature with humus content? तो कौन सा वाला हिमालयस में है जिस सॉइल को डेनुडेशन को फेस करना पड़ता है एंड इज एसिडिक इन नेचर विथ ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस भी है पर एसिडिक है। तो वे कौन सा वाला हिमालयस में, आपको तो पता ही होगा कौन सा वाला सॉइल होगा, लैटराइट, ब्लैक, एलुवियल और फॉरेस्ट, इट्स ऑब्वियसली फॉरेस्ट सॉइल, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 13th number question. टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज फॉर, किस चीज का, टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है, डेवलपिंग, डिस्ट्रॉइंग, मॉडिफाइंग, यूटिलाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज क्यों करते हैं, ऑब्वियसली यूटिलाइज करने के लिए, है कि नहीं। कोई चीज जैसे हम बोले थे कि दिस इज देयर, जैसे पोटेंशियल रिसोर्स, इट्स देयर इन द इट्स देयर इन द यूनिवर्स बट वी कैन नॉट यूटिलाइज इट, तो क्या फायदा उस चीज का। तो टेक्नोलॉजी नहीं है इसीलिए तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूटिलाइजेशन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 14th number question. The soil of India which becomes sticky in rainy season is, कौन सा वाला सॉइल इंडिया में स्टिकी बन जाता है रेनी सीजन में, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, कौन सा वाला होगा, obviously the most clay type of soil, right? So it is black soil, okay. Correct option is C. We move on to the 15th number question. The state with 10% of NSA. Now what is this NSA? NSA is net sown area, right? The area which is sown with crops only once, okay. Net sown area means what? The area which is sown with crops only once. That is what net sown area, okay. So 10% NSA, कौन सा वाला स्टेट में सिर्फ 10% होता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये NSA तो नहीं, इतना कम नहीं हो सकता, सो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, राइट। NSA सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, एक्चुअली दिस इज 10%, सबसे कम कोई दूसरा स्टेट में है, दैट इज उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड इज द स्टेट वेयर इट्स मोस्टली कवर्ड विद हिमालयस ना, वो हिमालय से पूरा कवर किया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम जो सॉइल है वो इनफर्टाइल है, तो कैसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, सो सबसे कम उत्तराखंड में होता है, बट दिस ऑप्शंस among these options Arunachal Pradesh is the correct answer. Now we move on to the 16th number question on the screen. The Indian states that have the highest net sown area respectively are, कौन सा वाला स्टेट का सबसे NSA ज्यादा है। अब तक तो बात कर रहे थे कि सबसे कम कौन सा है, तो let's talk about this Indian states that have highest NSA. तो उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, Tamil Nadu, sorry, this is not, because I've said that Uttaranchal is the
mostly covered with Himalayas. उत्तराखंड, उत्तरांचल, okay, these are mostly covered with Himalayas. तो इसका मैक्सिमम सॉइल इनफर्टाइल होता है, तो इसमें कहाँ होगा? तो ये वाला ऑप्शन तो कट आउट हो जाता है. हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिस इज द बेस्ट वन. यू नो ना, हरियाणा, पंजाब, बिहार इज बेस्ट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स. एंड नंबर सी इज महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला. तो इनमें से नहीं होता, ये कोस्टल एरियाज होते हैं. फिशरीज ये सब ज्यादा मेन ऑक्यूपेशन उन लोगों का होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है. एंड देन वी मूव ऑन टू द ऑप्शन डी, बिहार, बंगाल एंड आसाम. तो ये भी नहीं है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 17 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. What is the formula of cropping intensity? Very very important. Cropping intensity in percentage. ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. तो GCA हम तो NA से बोल दिए कि नेट सोन एरिया है. GCA क्या है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया ये सब क्या होता है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या बोले थे कि इट इज अ टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर. तो एक पर्टिकुलर ईयर में एक या फिर एक से ज्यादा बार इधर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, पर नेट सोन एरिया में सिर्फ एक बार. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन GCA एंड NSA. सो GCA एंड NSA, द करेक्ट ऑप्शन विच वन इट विल बी? GCA by NSA into 100. ऑब्वियसली परसेंटेज बोला गया तो into 100 तो होगा. GCA by NSA into 1000 ये तो ऑब्वियसली नॉट. NSA by GCA आप देखिए, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा A और C में. एंड GCA by NSA और कुछ भी नहीं है. सो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली into 100 तो चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, GCA by NSA into 100, right? We move on to the 18th number question on the screen. Barani cultivation is related to. तो बरानी कल्टीवेशन कौन सा वाला से रिलेटेड है? नंबर ए इज इरिगेटेड क्रॉप्स, नंबर बी ड्राइंग फार्मिंग, नंबर सी रेन फेड एंड एरोपोनिक्स. सो ये एरोपोनिक्स आपके लिए नया है ना. तो ये एक प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक है इन विच द रूट्स हैंग सस्पेंडेड इन द एयर. जैसे मैंग्रोव्स का होता है ना कि रूट्स ऊपर रहता है, सॉइल के अंदर नहीं. तो ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है ये फाइन मिस्ट के तरह ये डिलीवर हो जाता है प्लांट्स के थ्रू से. ठीक है, तो ये एरोपोनिक्स जो है ये वो प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक है जहां इसका जो रूट्स है वो एयर में सस्पेंड किया जाता है और मिस्ट के थ्रू से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सप्लाई किया जाता है. ठीक है, सो हियर द बरानी कल्टीवेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर रेन फेड, राइट? इट इज रिलेटेड टू रेन फेड. Okay, we move on to the 19 number question on the screen. Read the following statement by Gandhi ji and choose the correct option from the given below. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. What does this statement imply? This is very important that Gandhi ji has said, right? बहुत important वाला statement बोले हैं कि concern for resource depletion, concern for conservation of resources, concern for global warming, concern for environmental protection. So obviously ये resource depletion का बात कर रहे हैं कि हम सबके लिए particular resource तो है पर हम लोग का greed के लिए enough resources नहीं है, right? So the correct option is A. We move on to the 28th number question on the screen. The resources that are being utilized at present in a given is known as. जो utilize कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्सेस, बायोटिक एंड नेशनल. सो इनमें से कौन सा वाला होगा? इट्स ऑब्वियसली डेवलप्ड रिसोर्स, राइट? इट्स ऑब्वियस वन. डेवलप्ड रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो नहीं है. ओके, एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 21st क्वेश्चन. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन. ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सो 2 hours, 4 hours, 3 hours, 1 hour. तो कौन सा वाला होगा? ऑब्वियसली 3 hours. ओके, 3 hour आपको पता ही होगा. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 3 hour मतलब क्या, कौन सा आर है, राइट? वी मूव ऑन टू द 22nd क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. लैंड डिग्रेडेशन इन ओडिशा इज ड्यू टू. ओडिशा में जो लैंड डिग्रेड हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है?
माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, एक्सेसिव इरिगेशन, सैलिनाइजेशन। तो ऑब्वियसली ओडिशा में मिनरल्स तो बहुत ज्यादा है, तो माइनिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 23rd नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द स्टेट विथ ग्रेट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी इज, तो कौन सा वाला स्टेट का बहुत सोलर एनर्जी मिलता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गुजरात और राजस्थान में, बट द करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान। We move on to the 24th number question on the screen. On the basis of exhaustibility. Exhaustibility के हिसाब से resources can be divided into dash and dash. This is very easy question. Biotic, abiotic, renewable, non-renewable, individual, community, potential, developed. कौन सा वाला होगा? Renewable, non-renewable. वही तो एक exhaust करने वाले हैं, ये हम लोग use कर रहे हैं. So that is the only thing, right? Next we move on to the 25th number question on the screen. What among the following best describes the wasteland? तो कौन सा वाला wasteland को अच्छे से describe करेगा? A. Rocky, arid and desert areas. B. Land under permanent pasture. Land having forest cover. D. fallow land. तो कौन सा वाला wasteland है? Rocks. ओके, परमानेंट पैस्चर तो ठीक है, फिर भी वो हटा के किया जा सकता है, पर रॉक्स, एरिड, डेजर्ट एरियाज में आप क्या कल्टिवेट करेंगे? सो वेस्टलैंड इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द ऑप्शन ए। नाउ वी मूव ऑन टू द 26th नंबर क्वेश्चन। मैन इज कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्स बाय, मैन एक रिसोर्स में कन्वर्ट किया गया है, किससे? मनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ और एजुकेशन? एडुकेशन, राइट। Man is converted into resource by education. So that is the most important thing. Next we move on to the 27th number question on the screen. The lower horizon of desert soil has deposits of. तो पहले ही हम आपको बोल चुके हैं कि एरिड एरियाज में लोअर होराइजन में कौन सा वाला डिपॉजिट रहता है? कैल्शियम। यू डोंट हैव टू गो टू द अदर ऑप्शंस, राइट। कैल्शियम अगर दिखेगा तो बस उधर ही टिक मार्क कर दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 28th क्वेश्चन। रवाइंस इज अ कॉमन टर्म यूज्ड इन चंबल वैली फॉर। रवाइंस जो यूज किया जाता है चंबल वैली में, वो किस लिए? शीट इरोजन, गली इरोजन, विंड इरोजन और रिल इरोजन। तो कौन सा वाला इरोजन का है ये? एनीवन कैन से व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा वाला होगा? गली इरोजन, राइट। गली इरोजन अभी क्या चीज है कि गली इरोजन कब होता है कि व्हेन वाटर इज चैनल्ड अक्रॉस अनप्रोटेक्टेड लैंड। तो एक अनप्रोटेक्टेड जो लैंड है उनमें से अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो वो पूरा ऊपर का सॉइल लेके चले जाते हैं, राइट। सो इट कॉजेज सॉइल इरोजन। तो ऐसे करके रवाइंस फॉर्म हुआ है चंबल वैली में, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द 29th नंबर क्वेश्चन। द सॉइल ऑफ डेक्कन इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू इट्स। तो डेक्कन का कलर ब्लैक होता है किस वजह से? एक है कि कॉम्पोजिशन, मैच्योरिटी, ओरिजिन और फॉर्मेशन। तो ओरिजिन के लिए, हाँ, द डेक्कन का जो सॉइल है वो ब्लैक कलर का होता है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ ओरिजिन? सो जैसे ओरिजिन किस लिए है कि ये जो डेक्कन प्लेटो का जो सॉइल है ना, उसमें एक स्लीपिंग वोल्केनो रहता है, ठीक है। देयर इज अ स्लीपिंग वोल्केनो, तो इसीलिए वो जो सॉइल उसका आसपास में प्रेजेंट है वो वोल्केनिक रॉक का इरोजन के लिए। नाउ यू नो दैट वोल्केनिक रॉक्स आर ब्लैक इन कलर, तो उसका इरोजन की वजह से डेक्कन प्लेटो का सॉइल क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि उधर स्लीपिंग वोल्केनो है, करेक्ट। Next we move on to the 30th number question on the screen. The common example for an individual owned and a community owned resource is, जो इंडिविजुअल भी ओन कर सकते हैं और कम्युनिटी भी ओन कर सकते हैं। कौन सा वाला? रिवर ऑब्वियसली नॉट, सी नहीं, लेक भी नहीं, पॉन्ड, राइट। पॉन्ड इंडिविजुअल कैन ऑल्सो ओन एंड अ कम्युनिटी भी यूज कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मेरा है तो हम ही यूज करेंगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ, कि पूरा तालाब हम सिर्फ यूज करेंगे, नो, राइट। कम्युनिटी कैन ऑल्सो यूज इट, ओके।
We move on to the 31st question on the screen. The soil which is very poor in humus. कौन सा वाला soil ह्यूमस कंटेंट बहुत कम है, मतलब इनफर्टाइल है? कौन सा वाला? लैटराइट, एलुवियल, डेजर्ट एंड रेगस सॉइल. यू नो इट्स अ डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल में तो फर्टिलिटी है ही नहीं, राइट? ओके, वी मूव ऑन टू द 32 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. द सॉइल मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ये तो बिना बोले ही, बिना देख के आप बोल देंगे कि ये बचपन से पढ़े आए हैं, राइट? तो कॉटन सॉइल कहाँ ग्रो करते हैं? ब्लैक सॉइल में, राइट? ओके, वी मूव ऑन टू द 33 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. इफ द पेरेंट रॉक इज क्रिस्टलाइज इग्नियस, द सॉइल विल बी. अगर वो इग्नियस रॉक है तो वो कौन सा सॉइल होगा? बोलिए. इफ द पेरेंट रॉक इज क्रिस्टलाइन इग्निशियस, तो कौन सा वाला रॉक का होगा? सो इट इज बेसिकली विच वन? रेड सॉइल. ठीक है, पेरेंट रॉक जिसका इग्नियस होता है, ये याद रखिएगा कि रेड सॉइल जो होता है उसका जो पेरेंट रॉक है वो किससे बना है? द रेड सॉइल का इग्नियस रॉक से बना है. ओके, now we move on to the 34th question on the screen. The soil of India which supports 2/3 of its population. Soil of India कौन सा वाला soil में 2/3 of its population support करता है? ये भी बिना देख के आप बोल दीजिएगा alluvial soil. सबसे fertile है. Okay, it supports everything in this alluvial soil, right? So correct option is A. Now we move on to the 35th question on the screen. आयरन ओर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कौन सा वाला एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल, फ्लो, बायोटिक और नॉन रिन्यूएबल. तो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन रिन्यूएबल. इसको रिन्यू नहीं कर सकते आयरन ओर को, ठीक है? अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आयरन ओर कौन सा वाला का है, नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन ओर फ्रॉम वेयर वी आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन? कॉमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, we move on to the 36th question. State famous for terrace cultivation. ये भी तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट? स्टेट फेमस फॉर टेरेस कल्टिवेशन कौन सा वाला है? पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डी उत्तरांचल. तो थोड़ी देर पहले ही हम बोले कि उत्तरांचल इज मोस्टली कवर्ड विद हिमालयस, और हिमालयस में ही टेरेस कल्टिवेशन होता है, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, उत्तरांचल. Right? Okay. 37th number question on the screen. The shelter belts have stabilized sand dunes in the states of. तो ये जो shelter belts है, जो trees grow करते हैं around to provide a shelter in a line, वो sand dunes को stabilize किया है. Obviously you know जो sand dunes कहाँ पे ज्यादा होता है? Deserted area में. तो आसाम, गोवा, केरला तो वैसे ही आउट हो गया, तो रहा क्या? राजस्थान. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन टू द असर्शन एंड रीजनिंग. तो आपको पता ही होगा कि इसका डायरेक्शंस क्या क्या है, कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो पहला वाला ऑप्शन ये है. ओके, एवरी टाइम आई विल नॉट गिव दिस ऑप्शन, सो यू शुड नो दैट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is the correct explanation of assertion. Option 2 is both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation. C क्या है? Assertion is true, but reason is false. D है both assertion and reason are false. तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, right? Okay. So we move on to the 38th question that is based on assertion and reasoning. So alluvial soil is ideal for growth of paddy, wheat, cereal and pulse crops. And the reason is alluvial soil is well known for its capacity to hold moisture. तो ये क्या सही रीजन है? Yes, alluvial soil में तो paddy, wheat, cereal, pulse crops ये सब तो grow करते हैं. It's true. But is it the correct reason that it is well known for its capacity to hold moisture? नहीं, रीजन फॉल्स है, क्योंकि एलुवियल सॉइल में पोटाश ज्यादा रहता है. एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब आइडियल है शुगर केन, पैडी और व्हीट ग्रो करने के लिए. ये मॉइस्चर वाला कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए ये करेक्ट रीजन नहीं है. पैडी, व्हीट, सेरेल, पल्स क्रॉप्स ये ग्रो करने के लिए आपको पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड चाहिए,
ठीक है, सॉइल में, और लाइम चाहिए. सो दैट इज द रीजन दिस रीजन इज नॉट करेक्ट. तो इसमें वाटर रिटेंशन भी चाहिए, बट दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द व्हीट. वाटर रिटेंशन भी ज्यादा होना चाहिए. तो वो वाला ऑप्शन तो दिया ही नहीं है कि पोटेशियम, लाइम होना चाहिए, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होना चाहिए. तो ये दोनों तो मेन रीजन है पैडी व्हीट ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो वो तो रीजन में नहीं दिया हुआ है. रीजन में दिया हुआ है मॉइस्चर से नहीं होगा, राइट. So the correct option is C. Assertion is true, but reason is false. Right? Okay. Now we move on to the 39 question. Assertion: the denudation of the soil cover and subsequent washing away is called soil erosion. और reason क्या है? The process of soil erosion and soil formation goes on simultaneously. तो assertion तो सही है, रीजन भी सही है कि सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है. क्यों? तो फिर तो सॉइल इरोजन अगर हो गया, सॉइल फॉर्मेशन नहीं रहा, तो आप लोग खड़े कहां से हैं, राइट. तो assertion इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट assertion and reasoning is the lower horizon of the arid soil is occupied by कंकर. Okay. It is because of the increasing calcium content downwards in the arid soil. ये तो हम आपको बोल ही चुके हैं कि arid soil में कंकर रहता है, and obviously the rocks is only the main constituent of the calcium, right? So the assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation. So correct option is A. Now we move on to the 41st question on the screen, that is assertion: the laterite soil develops under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. And the reason is the soil is the result of intense leaching due to heavy rain. तो laterite soil जो है, जो tropical और subtropical climate में हो रहा है with alternate wet and dry season, ये सही है assertion. And the soil is the result of intense leaching. Obviously leaching के वजह से ही तो laterite soil होता है, right? So this is the correct explanation. So correct option is A. Now we move on to the case-based study, where I will give you a passage and from that you have to answer the questions, right? So passage पढ़ लेते हैं. Now resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. तो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस हर जगह पे होता है, राइट. तो इसमें क्या होता है कि सर्वे करना पड़ता है कि कहाँ पे है, मैपिंग करना पड़ता है कि इस जगह पे ये वाला रिसोर्सेस मिल रहा है, क्वालिटी देखना पड़ता है और क्वांटिटी देखना पड़ता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से आपको तो पता ही है ना, रिसोर्स प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि particular persons are getting particular type of resources, others are not getting, so this is not right. तो इंडिया में हर जगह में सेम टाइप का मिनरल्स नहीं मिलता है, कोई जगह पे कुछ फेमस वाला मिलता है, राइट. सो सेकेंड ऑप्शन इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड स्किल विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेट. ऑब्वियसली प्लानिंग के लिए सिर्फ प्लानिंग कर लिए, मैपिंग कर लिए, सर्वे कर लिए, पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो उसका क्या फायदा. And number 3 is matching the resource development plans with overall national development plans. फिर ये दिया हुआ था आपको बुक पे कि रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्लान्स है उसको नेशन के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है. तो तभी ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये इंडिया ने अचीव किया था, बट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने बनाए थे रिसोर्स प्लानिंग. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. तो एक रीजन को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा होना चाहिए, जहां पे रिसोर्सेज है लोग तो वहीं जाएंगे, ओके. पर एब्सेंस ऑफ एनी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस ये डेवलप होने नहीं देते एक रीजन को. एक रीजन में रिसोर्सेस बहुत है पर उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने का, तो इसमें डेवलपमेंट भी नहीं होता है उस रीजन का, ठीक है. तो देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कुछ कंट्री है जिसमें रिसोर्स है ही नहीं पर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है.
तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस पैसेज. व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी? क्यों है नेसेसरी? फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव. तो ये ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ओके, कंजर्व हो सके फ्यूचर के लिए, और टू अवॉइड फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन. Next we move on to the 44th number question on the screen. In spite of having a lot of natural resources, India's development shows कि natural resources रहने की वजह से, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस है, पर इंडियाज डेवलपमेंट शोज क्या दिखाता है? एडवांस टेक्नोलॉजी है, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, और ऑल ऑफ द अबव. तो कौन सा वाला होगा? इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इंडियाज अंडर डेवलपमेंट शोज. क्या इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग के पास रिसोर्सेस तो बहुत है, पर इंडिया का जो डेवलपमेंट हम लोगों को तो उतना दिख नहीं रहा है, राइट? तो वो किस वजह से है? लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के वजह से है कि इंडिया का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना रिसोर्सेस है ना उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट? So we move on to the 45th number question based on this case study. Why many regions of India are rich in resources but economically backward? क्यों होता है कि बहुत सारा तो जगह है जो रिसोर्सेस है पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? कौन सा वाला है? लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, पुअर क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. यह है क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही तो ना कि इंडिया का कुछ रीजन में रिसोर्सेस तो है पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. Now we move on to the 46th number question. Why certain regions despite having poor amount of sources are well developed? ये उल्टा क्वेश्चन है, जहां पे हम बोले ना कि रिसोर्सेस है पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पर कुछ जगह है जिसमें रिसोर्सेस नहीं है पर वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है. क्यों? Region have better resource planning, unequal distribution of resources. Region have less density of population, good quality of resources. कौन सा वाला होगा? प्लानिंग. रिसोर्स कैसे प्लान करेंगे वही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पैसेज and the last passage for today, that is, let's read. We live on land, we perform our economic activities on land, we use it in different ways. Thus land is a natural resource of utmost importance. तो आपको तो ये पता ही है कि लैंड में हम लोग सब कुछ करते हैं, राइट? तो वो हम लोग का इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. इट सपोज नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ इट सपोर्ट करता है. However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use. तो ये finite में infinite नहीं है. The available of land for various purposes with careful planning. We should use the land with careful planning, right? India has land under a variety of relief features. तो आपको तो पता ही है कि इंडिया का जो लैंड है वो बहुत सारे रिलीफ फीचर्स में है, राइट? जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, आइलैंड्स. तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन. तो 43% क्या प्लेन लैंड है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. माउंटेन्स में कितना परसेंटेज है लैंड का? 30%, ठीक है, जिसमें पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स है. ओके, सीजनल नहीं है, पेरिनियल. ओके, पेरिनियल मीन्स थ्रू आउट द ईयर इट विल फ्लो. एंड एंश्योर प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म. माउंटेन्स तो आपको पता ही है, ये कोई भी माउंटेन्स में टूरिस्ट ज्यादा होता है. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन. तो इट पोजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉस्फोरस और फॉरेस्ट. तो प्लेटूज में हम लोग इधर क्या देखें कि 43% प्लेन एरिया का है, 30% माउंटेन्स का और 27% जिसमें प्लेटू है उसमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब ज्यादा मिलता है. सो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन पॉपुलेशन. सो लैंड इज रिसोर्स. Which one is the correct one? Optimum, natural, potential or man-made? Obviously, land is what? Potential resource, right? Potential resource. तो कुछ resources है. Potential resources हम क्या बोले थे कि this is available, but we cannot utilize it.
तो ये जो है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब के हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते. ओके, केयरफुल प्लानिंग ऑफ लैंड रिसोर्स इज नीडेड एज. क्वेश्चन नंबर 48. As India has a variety of resource, land is finite, land is of utmost importance, all of the above. तो केयरफुल प्लानिंग क्यों चाहिए? क्योंकि लैंड इज फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है जैसे बोले हम, राइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 49 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स. कौन सा वाला प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है? डेवलपिंग टूरिस्ट प्लेस इन माउंटेन्स, ये तो नहीं है. कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स नियर पेरेनियल रिवर्स, ऑब्वियसली नॉट. प्लांटिंग ट्रीज नियर माइंस, दिस इज ऑल्सो नॉट. दीज आर व्हाट? नॉट अ प्रॉपर. क्वेश्चन क्या है? नॉट अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन. तो सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ऑन फर्टाइल लैंड, ये तो हद ही हो गया, राइट, कि फर्टाइल लैंड में कौन इंडस्ट्री सेटअप करेंगे. सो ऑब्वियसली दैट दिस इज द वन which is not a proper utilization of land resource. And we come to the end question, that is question number 50. The plateau region of India can be developed as. Plateau region को कैसे develop करेंगे? Industries, extraction of minerals, tourist zones, all of these. तो plateau region को सब कुछ कर लो, all of these. Industries भी करो, extraction of minerals भी करो, tourist zones भी करो, all of these, right? So the correct option is D. So here we come to the end of this resource and development chapter, MCQs. These are very important. If you go through ना, पक्का I am saying you, आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%, right? अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको टाइमली वीडियो मिल सके, है ना. तो जो भी हम कमेंट करने के लिए बोले हैं, प्लीज डू कमेंट ऑन इन द वीडियो, राइट, इन द कमेंट बॉक्स, दैट what all questions I have asked. और please ये सब questions अच्छे से करके जाइए. I have collected each and every point from the book. Okay, so you will get it obviously, right? Okay, thank you students. I hope all the best for your board exams, right? Thank you.